नाम धन वाहिगुरु साहिब जी। इक मन पुरख ते आए बरदाता, संत सहार सदा बिख्याता। तास चरण लै हृदय बसाऊं, तौ परम गुरु नानक गुण गाऊं। गाऊं गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द सरे। गावे गंभीर तीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरे। गावे इंद्राद भगत प्रहलादिक, आत्म रस जिन जानियो। कब कल सुजस गाऊं गुर नानक, राज जोग जिन मानियो। सुनी पुकार दातार प्रभ, गुर नानक जग माहे पठाया। चरण धोए रह रास कर, चरनामृत गुर सिखां पिलाया। बादशाह दरवेश जुगहो जुग अटल, चवर छतर तखत दे मालक। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी मुबारक गोद अंदर ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤ ਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਪਾਸੋਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬੜੇ ਵਫਦ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਕੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਾਸੋਂ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਆਪਨੇ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी दे इतिहास विचों ते धन गुरु नानक साहब जी दी पवित्र बाणी विचों अमोलक बचन आप संगत नाल सांझ कर सकीए। सो मन बिरती इकागर कर सतगुरु जी दे चरणां विच लवावो हाजरी। फतेह नाल पाओ सांझ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तरन तारण साहिब दे लागे एक पिंड है जिहदा नां है पट्ठे विंड पिंड। इस पट्ठे विंड पिंड दी धरती ते भाई राम नारायण रहिंदा है। रब ने किरपा कीती ते उहदे घर एक पुत्र दी दात बख्शी। नाम रखिया शिव नारायण। शिव नारायण दा समा पा के विआह बीबी बनारसी जी दे नाल हो गया।
ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਨਾਰਸੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਸਨ 1440 ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸਨ 1443 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਂ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਬਨਾਰਸੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ। ਰਹਿ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੱਠੇਵਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜਦਾਦਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਕੁਝ 4 ਕੁ ਕਲਾਸਾਂ ਪੇਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਸੋਹਣੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਾਤ ਕਹਿਣੀ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਝ ਹੈ ਮੈਂ ਪੇਟੋਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਪੜ ਜਾਣ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੇਟੋਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਇਹ 3 ਆਸਾਂ ਲਾਉਂਦੀ। ਮੇਰੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪੇਟੋਂ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ ਪਰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵਾਂ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਲੀਮ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ। ਮਾਤਾ ਬਨਾਰਸੀ ਨੇ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਬਾਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਭਾਈ ਸ਼ਿਵ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਭਾਈ ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਨੇ ਕਰਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਬੱਚੇ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੀ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋਰ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਕਾਲੂ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਾਚਾ ਭਾਈ ਲਾਲੂ ਜੀ ਸਨ 1449 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਨ 1459 ਤੱਕ 10 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਚੇਤੇ ਹੈ? 13 ਸਾਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ ਹੈ
ते आसा की वार ओनू कन्नी सुन सुन के जुबानी याद हो चुकी सी। माता बनारसी ते भाई शिव नारायण दोनों बच्चियां नू पट्ठे विंड पिंड तो सुल्तानपुर लोधी ले आए, पढ़ने बिठाया। उस्ताद ने कहा बनारसी जे इन्ना चाहे तेनू बच्चे पढ़ाउण दा थे लै, तू दोवें बच्चे ले आई है ते दोनों बच्चियां दे बदले मैं एक बच्चा फ्री पढ़ावांगा ते इक्को दी ही फीस लवांगा। मैं जदों आ बचन इतिहास विच पढ़े तो सोचदा हाँ कि कई स्कूलों विच अज भी ये बात हूबहू लागू है। जदों दोने बच्चे 1449 विच पढ़ने पाए ते 5 साल बाद माता पिता नू सुल्तानपुर लोधी उस्ताद ने सद लिया। कहण लगे बनारसी मैं ते बड़ा जोर ला लिया, तेरा पुत्र लालू पढ़न विच ठीक नहीं है, ये कोई खास मुहारत हासिल नहीं कर सकता, इसलिए चंगा है कि तुसी छोटे बच्चे नू नाल ले जाओ ते किसे होर कम्मे ला दिओ। पर हाँ तुहाडा वड्डा पुत्र कालू मेहता पढ़न विच बड़ा निपुण है, एक दिन चोटी दा विद्वान बनेगा। छोटे बच्चे नू माँ बाप घर ले आए, खेती जे काम चला लिया। वड्डा पुत्र 1454 तो लेके 1459 तक पढ़ता रहा। 10 साल पूरे हो गए, पढ़ाई पूरी हो गई, बच्चे नू लैण लई माता पिता आ गए। उस्ताद ने माता पिता नू एक बात कही कि सच पुछो तो तुहाडा पुत्र एडा विद्वान बन गया पढ़ के, जेड़ियां बातां मैनू भी नहीं पता वो तुहाडे पुत्र नू ज्ञान विच आ गईयां ने। कहण लगे बस जिदन तुहाडे बच्चे दी विद्वता परखी गई, ये किसी उच्चे पदवी दा मालक बन जाएगा। 1459 च पढ़ाई पूरी हुई ते कालू मेहता घर आ गए। 1 साल नौकरी दी भाल कीती, किते नौकरी नहीं मिली। परिवार दे जियां ने बैठ के फैसला किया कि देश दी राजधानी है लाहौर, सानू इथों जमीन वेच के लाहौर चले जाना चाहिए। राजधानी विच पढ़िया लिखिया बच्चा जाएगा, किते ना किते इनू नौकरी मिल जाए। 1460 विच भाई राम नारायण ते शिव नारायण ने पट्ठे विंड पिंड दी जमीन वेच दिती, घर दी थां वेच दिती ते इथों आप परिवार समेत घर दा समान लैके गड्डे ते लद के आप राय भोए दी तलवंडी जा पहुंचे। इस राय भोए दी तलवंडी ते जाके जमीन मुल खरीदी है। मुल खरीद के घर बनाउण लगे ते पिंड दा चौधरी है राय बुलार। ये दरअसल राजपूत भट्टी सी, पर इनके बाप ने राय भोए ने मुसलमान धर्म अपना लिया सी, इस करके ये राय बुलार भी हुण मुसलमान है। जदों भाई राम नारायण ते शिव नारायण राय भोए दी तलवंडी च जमीन लैके घर बनाउण लगे, पिंड दे चौधरी ने इन्हां नूं घर बनाउण तो रोक दिता, अपने कोल बुला लिया। कहण लगे भी तुसीं मेरे पिंड च घर नहीं बना सकते, तुहाडा की पता पिछला पिंड तुसीं क्यों छड्ड के आए हो। जदों तक तुहाडी पिछले पिंड तो इनकुआरी ना कर लवां तुहानूं घर नहीं बनाउण दिआंगा। पुछया पहला तुसीं दसो पिछला पिंड किहड़ा ते क्यों छड्ड के आए। कहण लगे तरन तारण दे लागे साडा पिछला पिंड पट्ठे विंड, छड्डिया क्यों। कहण लगे साडा बच्चा पढ़ के चोटी दा विद्वान होया, बच्चे दी नौकरी खातर पिंड छड्ड के आए। राय बुलार कहंदा ठीक, तंबू ला के परिवार दा टिकाणा करो, घर नहीं बनाउण दिआंगा। इनकुआरी लई 2 बंदे भेज दिते। पट्ठे विंड पिंड चों इनकुआरी आ गई कि राय बुलार
पिंड दे लोग कहते ने उन्हां दा बच्चा पढ़ के विद्वान बनिया, बच्चे दी नौकरी खातर पिंड छड्डिया। खबर मिली ते राय बुलार ने परिवार दे जियां नूं कोल बुला लिया। भाई राम नारायण ते शिव नारायण आ गए। कहण लगे तुहानूं अपने पिंड च घर बनाउण दी इजाजत दिना, तुहाडी इनकुआरी पिछों ठीक आई है, तुसी चंगे परिवार चों हो, पर अपने बच्चे नाल लिया के मेरी मुलाकात ते कराओ। तुहाडा बच्चा किड्डा कु वड्डा विद्वान है, तुसी भी कहंदे हो बच्चा विद्वान, तुहाडे पिछले पिंड दे लोग कहंदे बच्चा विद्वान, मैनूं मुलाकात ते कराओ। हुण जदों ये गल राय बुलार ने कही, उसे वक्त कालू मेहता दा पिता भाई शिव नारायण उठ के अपने तंबू च आया, अपने पुत्र कालू मेहता नूं नाल लिया ते राय बुलार दे दरबार च पहुंचे। हुण राय बुलार चौधरी है इलाके दा, जिद्दां ही पहुंचे तख्त ते बैठा राय बुलार, सामने आ रहा है कालू मेहता। राय बुलार ने जिद्दां ही कालू मेहता नूं देखिया, उसे वक्त तख्त तो उठ के जाके घुट के जफ्फी पा के अपनी छाती नाल ला लिया। हुण कालू मेहता दा दादा ते पिता हैरान ने कि पिंड दा चौधरी साडे पुत्र नूं किवें जाणदा, वो बड़े हैरान ने। ते जदों दोनों ने एक दूसरे नाल खुश हो के बातां करनियां शुरू कीतियां, अगे वध के दादा राम नारायण पुछदा पुत्रे नूं, बेटा तू जानदा है पिंड दे चौधरी नूं? अग्यों हाथ जोड़ के कहंदे पिता जी, ए राय बुलार मेरे नाल 5 साल सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते इको क्लास विच नाल पढ़े, ए मेरा सहपाठी है। उसे वक्त राय बुलार खुश हो के कहंदा है, तुसी बच्चे दी विद्वता बारे नहीं जानदे, ये मेरे तो भी चोटी दा विद्वान है, वाकई तुहाडा बच्चा बड़ा विद्वान है। ते जे तुहानू मंजूर होवे ते मैं अपने कोल तुहाडे बच्चे नू पटवारी दी नौकरी ते रखदा, कि तुहानू पटवारी दी नौकरी मंजूर है? वो पंजाबी दा मुहावरा भी अन्ना की भाले 2 अखां, भी पिछला पिंड ही बच्चे दी नौकरी लई छड्डिया। परिवार ने पटवारी दी नौकरी एक्सेप्ट कर लई। सन 1460 विच कालू मेहता नौकरी ते लगे। 1 साल नौकरी करन दा वक्त गुजरिया, 1 साल विच पिछे पक्का घर भी बन गया। 1 साल बाद जदों जमीन दा खेती दा टैक्स इकट्ठा करके पटवारी कालू मेहता ने राय बुलार दे समक्ष रखिया, वो हैरान हो गया। अज तक ते किसे पटवारी ने इन्नी मुलाजमत इकट्ठी नहीं की जिन्नू कालू मेहता तू 1 साल विच इकत्तर कर दिती। खुश हो के राय बुलार ने तनख्वाह तो अलावा कालू मेहता दे नाम 5 पिंडां दी जगीर ला दिती। हुण इत्थों ध्यान देना कि गुरु नानक साहब दे घर अमीरी ने, बाहर दी अमीरी ने एंट्री ले लई है। ये सिर्फ बाहर दी अमीरी है, अंदर दी अमीरी लैके ते मेरे गुरु नानक पातशाह ने हजे प्रगट होना है। एक तां पटवारी दी नौकरी, दूजा 5 पिंडां दी जगीर दी मुलाजमत इकट्ठी होनी। 1462 दा वक्त आ गया। राम नारायण अपने पुत्र शिव नारायण नूं कहंदा, बेटा मेरा पुत्र कालू मेहता जवान हो गया, 22 साल उम्र हो गई। 1440 का जन्म है, 1462 आ गया। गभरू जवान है, सुख नाल पटवारी बन गया, कोई रिश्ता टोल लो। रिश्ता लभ्या, लाहौर दी धरती है, पिंड दा नाम है चाहल। चाहल पिंड दी धरती ते भाई रामा रहिंदा है, ओदी पत्नी दा नाम है बीबी भिराई। उन्हां दी वड्डी बच्ची है जिहदा नाम है बीबी तृप्ता। छोटा एक पुत्र है जिहदा नाम है भाई कृष्णा। फिर एक छोटी बच्ची है जिहदा नाम है बीबी लखो। ये कौन ने जी? आप तवज्जो दे के सुनना।
भाई रामा गुरु नानक साहब दा नाना जी है, बीबी पिराई गुरु नानक साहब दी नानी है, माता तृप्ता जिन्हें धन गुरु नानक साहब दी मां बनन दा सुभाग प्राप्त करना, छोटा पुत्र है भाई कृष्णा जो गुरु नानक साहब दा मामा है, ते सब तो छोटी बच्ची है बीबी लखो जो धन गुरु नानक साहब दी मासी है। ये किथे रहिंदे ने जी? लाहौर दे पिंड चाहल दी धरती ते रहिंदे। हुण एक बात होर बड़े स्वाद दी इतिहास विचों आप जी दे समक्ष रखदे हां कि कालू मेहता दा जिस घर रिश्ता हो रहा है वो है भाई रामा, ते भाई रामा भी लाहौर दी धरती ते पटवारी है। पटवारी दा रिश्ता पटवारी दी धी नाल हो रहा है। तो फिर एक होर बात, गुरु नानक साहब दा जीजा भाईया जयराम पटवारी, गुरु नानक साहब दा नाना भाई रामा पटवारी, गुरु नानक साहब दा पिता कालू मेहता पटवारी, गुरु नानक साहब दा सौरा भाई मूलचंद भी पटवारी। पटवारियां दा रिश्ता पटवारियां दे घर हुंदा रहा। इधर सन 1462 विच रिश्ता होया ते विआह दा दिन नेड़े आया। अपने कोल बना बुला के भाई राम नारायण अपनी नौ बीबी बनारसी नूं कहंदा, धीए देख अज साडे पोते दा विआह है, विआह के घर विच बच्ची ने आउणा है, ते परमात्मा ने साडे घर दियां 3 पीढ़ियां विच धी नहीं बख्शी। साडे खानदान विच 3 पीढ़ियां च रब ने धी नहीं बख्शी। ऐ बीबी बनारसी तैनू भी साडे घर विच नौ बना के नहीं धी बना के रखिया, ते मैं तैनू भी बेनती करदा भी जेड़ी बच्ची तृप्ता मेरे पोते नाल विआह के घर आ रही है ओनू नौ नहीं धी बना के घर रखी। बीबी बनारसी ने अपने सौरे राम नारायण नाल वादा प्रगटाया, पिताजी सच विच धी वाला प्यार देंगी, मां बन के रोल अदा करांगी, सस नहीं। वक्त अगे गुजरिया, 1462 विच विआह हो गया। माता तृप्ता जी विआह के घर आ गए। माता तृप्ता दी कुख नूं भाग लग्या। 1464 का वक्त आया। हुण पहली डिलीवरी होनी सी, ते पुराने समय विच एक रीत सी। ये रीत 30 कुछ साल पिछे ही साडे सिख घराने चो जुदा हुई है, नहीं तो 30 साल पिछे चले जाइए तो इस रीत नूं पीढ़ी दर पीढ़ी ढोंदे सन लोग। वो रीत की सी कि बच्ची दी जिहड़ी फस्ट डिलीवरी हुंदी सी उस वक्त बच्ची नूं ओहदे पेके घर भेज दिता जांदा सी। उहदा कारण सी, पेके घर क्यों भेजदे सन बच्ची नूं कि छोटी उम्रे बच्चियां दा विआह हुंदा सी ते छेती ओनूं बच्चे दी दात नसीब हो जाती सी। वह हजे पति नाल भी घुंड कढ़ के जिंदगी गुजारदी सी, सस सहुरे तो भी घुंड कढ़ के जिंदगी गुजारदी सी। प्रॉपर तरीके नाल परिवार दे जियां नाल ओ खुल नहीं सी पाउंदी, अपने दिल दी बात सारी उन्हां दे सामने रख नहीं सी सकदी। इस करके बच्ची नूं पेके घर भेज दिता जांदा सी कि कोई सुख दुख दी बात होएगी अपनी मां नाल खुल के कर लेगी। इस करके पहली डिलीवरी अमूमन तौर ते नानके घर ही होया करदी सी। इधर मात तृप्ता नूं कालू मेहता छड्डण वास्ते राय भोई दी तलवंडी तो चाहल पिंड तुरन लगे ने, ते दादा भाई राम नारायण कालू मेहता नूं रोकदा है। जेब चों पैसे कढ़ के पोते दी हथेली ते रख के मुट्ठी बंद करके कहंदा, बेटा जी
आ लफ्ज मेरे कान च सुन के जाना। ते कान विच दादे ने बात कह दी। पत्नी नूं नाल लैके सौहरे घर पहुंचे, पत्नी नूं सौहरे घर छड्डिया ते जेड़े पिता दादा जी ने पैसे दिते सन अपने सौहरे पिता दी हथेली ते रख के हथेली बंद करके आख्या, पिता जी मेरे दादा जी ने यह गल कह के भेजी है, मैं भी इस गल नाल सहमत हाँ भी साडे खानदान दियां 3 पीढ़ियां च धी पैदा नहीं हुई। जे मेरी पत्नी दी कुख चों धी पैदा होवे ते मेरे सौहरे पिंड चाहल दे विच हर घर देसी घ्यो दे लड्डू वंड के आउणा, जे मेरे घर पुत पैदा होवे ते गुड़ वंडना। हुण मैं सोचदा भी जेड़ी बात गुरु नानक साहब ने कही सो क्यों मंदा आखी है। जित जम्मे राजान उस गल दा होका ते बाबे नानक दे प्रकाश तो पहला बाबे नानक दे घर विच चल रहा है। धी नूं किन्ना मान सत्कार दिता जा रहा। समा पा के सन 1464 नूं बच्ची दा जन्म होया। भाई रामे दियां अखां च पानी सी कि मेरे घर दोती ने जन्म लिया ते मैनू कैसा कुड़म परिवार टकरिया जेड़ा धी दी आमद ते देसी घ्यो दे लड्डू मेरे पिंड विच वंडवा रहे। हुण देसी घ्यो दे लड्डू हर घर पहुंचे, पिंड दे लोग वधाइयां देण घर आए ते आके सारियां ने चाह कीता। बच्ची नूं गोदी च चुकदे ने ते बच्ची दे मामा कृष्णा ते मासी लखो नूं कहिंदे ने ये बच्ची ते नानकियां दे पैदा हुई है, ये ते नानकी है। सारा पिंड बार बार ये बातां कहिंदा है ते परिवार ने बात पक्की कर लई कि नानकियां दे घर पैदा हुई है। वाकई ये ते नानकी है। रहिंदी दुनिया तक बच्ची दे नां नाल नानकियां दा नाम ही जुड़ जाएगा ते बच्ची दा नां ही नानकी रख दिता गया। समा अगे चलिया। कालू मेहता अपनी पत्नी नूं लैण आया। खबर मिली बच्ची पैदा हुई। रज के पिंड च चाह कीता गया। लैके सौहरे घर पहुंचे ते सौहरे घरों लैके बच्ची ते पत्नी नूं तुरिया कालू मेहता ते अपने घर राय बुलार दे सद्दे ते पूरा पिंड आया ते धी दी खुशी च रज के परिवार ने चाह कीता। 5 साल होर गुजर गए। 1469 का समा आया। भैन नानकी 5 साल दी हो गई। ते याद रखना साडे समाज विच बेबे किया जांदा सी भैन नूं ते सिर्फ 50 साल पिछे जाने आ ते असी इस लफ्ज दे अर्थ बदल ले। 50 साल पिछे जावांगे इउं कह लवां कि 1970 दे दहाके विच पहुंचांगे ते असी बेबे दादी नूं जां मां नूं कहना शुरू कर दिता। पर साडे घराणिਆਂ विच बेबे लफ्ज भैन वास्ते वरतिया जांदा सी ते जेड़े गुरु ग्रंथ साहिब दा सहज पाठ करते ने 14 वरी गुरु ग्रंथ साहिब विच भी बेबे लफ्ज आया ते बेबे दा अर्थ भैन है। एक शब्द है 143 अंक ते गुरु नानक साहिब जी दा। उत्थे भी सतगुरु कहिंदे ने पहले प्यार लगा थण दुध, दूजे माए बाप की सुध, तीजे भैया भाभी बेब। बेब माने बेबे, बेबे तो भाव है भैन। हुण इसे करके सानू इतिहास च लफ्ज मिलता है बेबे नानकी। अर्थ करांगे भैन नानकी। समा पा के सन 1469 मात तृप्ता दी कुख नूं फिर भाग लगे ते दौलतां दाई नूं बनारसी ने घर बुला के जनेपे दी सेवा झोली पा दी। हुण दौलतां दाई आके कहंदी वे कालू मेहता
देख तू है पटवारी, सुख नाल 5 पिंडां दी जगीर दा मालक भी है, ते मेरी मां ने मेरा ना दौलतां रखे। मैं बड़े घरां विच जाके जणेपे दी सेवादाई दी निभाई है, पर लोग उतरे हुए पुराने कपड़े दिंदे ने। मैं उतरे हुए पुराने कपड़े पा के हंडौनी हाँ, पर जे तेरे घर पुत पैदा होया ते बस्तर नवें लवांगी। बुजुर्ग मातावां बैठियां ने, दाइयां नाल इदां ही कीता जांदा सी। इस करके फिर वो दाइयां दी प्रक्रिया समाज चों खत्म हो गई। ये गायनी डॉक्टर आ गईयां, वो हुण 1.5 लाख भी ले लैंदे ने ते चावां नाल दे के आउंदे ने। मैं ते हैरान हो गया कि पंजाबी बाग दा एक परिवार, उन्हां दी नौं दी कुख चों बच्चे ने जन्म लैना सी ते गुड़गावा एक्सपोर्ट हॉस्पिटल विच उन्हां ने 4th फ्लोर ते जाके डिलीवरी कराई ते डिलीवरी दा खर्चा 4.5 लाख रुपये दिता। दाइयां नूं लोग पुराने कपड़े ते 5 किलो दाने ते गुड़ दे के तोड़ दिंदे सी। कालू मेहता कहंदा दौलतां घबरा ना, नवें बस्तर देआंगा, दाने भी देआंगा, गुड़ भी देआंगा, पैसे भी देआंगा। जदों तू कहेगी मैं रज गई, तैनूं तां घरों तोरांगा। समा पा के माता बनारसी जी कमरे विच ने, माता तृप्ता जी कमरे च ने, दौलतां दाई भी आ गई। इधर मुक्की जिवें कोई उडीक, दिसी चानण दी एक लीक, मिटिया कई सदियां दा ढेर, चानण होआ 4 चुपेर। सन 1469 आन, प्रगटे नानक गुरु महान, जिसनों पूजे सगल जहान, माता तृप्ता उच्च महान। जिसनों पूजे सगल जहान, माता तृप्ता उच्च महान। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी का आगमन हो गया। जिद्दां ही साहिबां दा प्रकाश होया, इतिहास ने यह बात बड़ी खुल दिली नाल लिखी है कि सतगुरु प्रकाश वेले रोए ने। हुण चाहे उस वक्त दी दाई सी ते चाहे अज दी गायनी है, उन्हां कोल मैथड उही है कि जे ते बच्चा बाई बर्थ इमीजिएटली रो पिया है ते बच्चा हष्ट पुष्ट है, जे नहीं रोया बच्चे नूं कोई प्रॉब्लम, उसे वक्त उन्होंने रुवाया जाता। हुण दौलतां ने की कीता, अज दी गायनी लत्तां पकड़ के मुद्दा लटका के उहदे चपेड़ा मार के रवाउंदी। उदों की कीता जांदा सी, इतिहास से बचन लिखिया भी फटाफट दौलतां ने एक कपड़ा लिया, धरती ते विछाया, साहिबां नूं लिटाया ते छाती ते हत्थ रख के, जिथे हार्ट चलदा है, छाती ते हत्थ रख के जोरां नाल झंझोड़िया। साहिब फिर नहीं रोए। हुण दौलतां नूं पसीना आउंदा है भी मैं तां वधाई लैके जानी, पैदा ते पुੱਤ होया, पर रोंदा नहीं। इन्हें फिर हाथ रख के छाती ते तेजी नाल झंझोड़िया। हुण साहिबां ने नेत्र खोल लए, अखां खोल के जिद्दां ही पुतलियां अखां दियां खोलियां ते दौलतां दा हाथ रुक गया। जिद्दां ही साहिबां ने अपने नेत्र दौलतां दाई दियां अखां च पाए ते पातशाह ने अपने चेहरे चों सोहनी जी मुस्कुराहट दे दी। जिद्दां ही मुस्कुराए, दौलतां दाई ने उस वक्त चुक के छाती नाल ला लिया। ये हुण बचन मेरे नहीं, ये एक एक बचन इतिहास च लिखे है। जे चाहां ते इतिहास दे उस सारे ग्रंथ नूं भी आप जी दे नाल पढ़ के सुना सकदा, पर इन्ना समा नहीं। इधर
जिद्दां ही मुस्कुराए ते दाई नूं अंदर दा चैन पिया, पर याद रखना साहिब रोए नहीं ने। जदों मुस्कुरा पए ते रोए नहीं, छाती नाल ला के ते साहिबा नूं फिर गोदी च चुक के माता तृप्ता दी गोदी च पकड़ा के मत्थे ते हत्थ मार के दौलतां कहंदी है, दौलत अपने आप नूं नी दौलतां तू किन्नू रवाउण लगी है, जेड़ा रोंदियां नूं चुप कराउण आया होवे वो ते अपने प्रकाश वेले भी मुस्कुराउंदा हुंदा है। जेड़ा रोंदियां नूं चुप कराउण आया होवे वो ते अपने प्रकाश वेले भी मुस्कुराउंदा हुंदा है। सब तो पहला जे गुरु नानक साहब नूं रब किसे ने जाने है तो वो है दौलतां दाई। इउं कह लवां ते कोई अतकथनी नहीं होएगी। गुरु नानक साहब दी जे कोई पहली सिख बीबी है ते वो है दौलतां दाई। इन्नी देर बाद दौलतां दाई ने पित्तल दी थाली चुकी ते कमरे अंदरों जोर नाल पित्तल दी थाली कड़छी नाल वजा दित्ती। तुसी कहोगे भी इस पित्तल दी थाली नाल की कनैक्शन? बुजुर्ग मेरियां दादियां मावां बैठियां ने, उन्हां नूं ये बात पता है कि उचेचे तौर ते न्यू बेबी दी डिलीवरी हुंदी सी दाई वेले ते चेचा थाली वजाई जाती सी भी घर दे बाकी मैंबरां नूं खबर मिल जाए कि बच्चा पैदा हो गया। थोड़ी देर बाद दौलतां दाई कमरे चों बाहर निकली। वे कालू मेहता वधाई होवे, वे शिव नारायण वधाई होवे, वे राम नारायण पड़दादा बन गए वधाई होवे। तेरे घर विच कालू मेहता पुत्र दी दात बख्शी है वाहिगुरु ने। बस वधाई सांझी करके दौलतां दाई खड़ोंदी ते कालू मेहता उसे वक्त नौकर दे कोलों दाने, नवा बस्तर, उत्ते पैसे, उत्ते गुड़ रख के दौलतां दाई नूं भेटा करदे ने। दौलतां दाई कहंदी कालू मेहता मैं नहीं लेना कुछ, सब कुछ वापस ले जा, मैं नहीं लेना। कहंदे क्यों, की होया? कहण लगी मैं रज गई। दौलतां कहड़ा की चाहनी है? हुण जेड़ी बात दौलतां दाई कालू मेहता नूं कह रही है वो एक एक पंक्ति में इतिहासक ग्रंथ सूरज प्रकाश विचों आप जी दे समक्ष रखण लगा। ध्यान दे के सुनना। दौलतां कहंदी बहु सिस जन में मम कर माही, यह अचरज कब देखे हो नाही। बड़े बच्चे मेरे हत्थां विच पैदा होए ने, बड़ी मैं दाई दी सेवा कर ले। बहु सिस जन में मम कर माही, यह अचरज कब देखियो नाही। आ वाला कौतक मैं अज तक नहीं देखिया। दौलतां केड़ा कौतक? कालू मेहता आ कौतक, बच्चा जन्म लवे ते रोवे ना, रवाउण लगो ते उपरों मुस्कुरावे। आ वाला कौतक मैं किते नहीं देखिया। पुछया की होया? अग्यों कहंदी है दीरग नर जो बिलास मिलत है, त्यों इन कीते शब्द भले हैं। कालू मेहता जिवें वड्डा कोई इंसान ओदे तो कोई गल पुछो ते अखां खोल के अखां दे इशारे नाल, चेहरे दी मुस्कुराहट नाल अपने दिल दी बात दूसरे नूं समझा दिंदा है। मैं तेरे पुत्र नूं रवाउण दा यतन कीता, उन्हें नेत्र खोल के चेहरे तो मुस्कुरा के दसिया दौलतां तू किन्नू रवाउण लगी है। ये ते रोंदियां नूं चुप कराउण वाला आ गया है। हुण कालू मेहता पता की सोचदा है? कहंदा भी दरअसल दौलतां दाई
मेरे घर पुत पैदा हो गया है। ये बहुती वड्डी वधाई लैण दे चक्कर च मेरे घर की बात नूं वधा चढ़ा के दस रही है। नौकर नूं कहंदा जा नौकरा इन्ने दाने इहदे बोरे च भर दे जिन्ने ये चुक के लिजा सकदे। नौकर दाने भर लिया। कालू मेहता ने होर पैसे जेब चों कड्डे ते कपड़ियां ते रख दिते। दौलता दाई ने हाथ जोड़ते। कालू मेहता मैं रज गई, तेरे घर रब आया, मैं रब दे दर्शन कीते ने, मैं रज गई। मां ने ना दौलतां रखिया सी, दौलत नहीं मिली सी, लोकां दे पुराने कपड़ियां ते दाणियां ते जीवन बसर करदी सी। अज तेरे पुत्र दा दर्शन करके मैं रज गई, अज मैं दौलत वाली हो गई। इधर दौलतां दाई बिना कुछ लिया घरों तुर पई। कालू मेहता नूं चंगा ना लगा। बई एहो जे वक्त ते गरीब दी दुआ लैनी चाहिए। सच विच कुछ हुंदे ने लोग, मैनूं चंगी तरह पता है 2013 विच शालीमार बाग तो एक परिवार सी, उन्हां दे घर मालक ने 17 साल बाद विआह तो 17 साल बाद मालक ने पोते दी दात बख्शी। ते जिद्दां ही दादे नूं खबर देण आई नर्स भी पोता पैदा होया, दादे ने 12 तोले दी चैन उतार के नर्स दे गले 'च पा दित्ती सी। खैर कालू मेहता नूं बड़ा दुख लगा भी कुछ लैके नहीं गई। उन्हें गुड़ चुकिया ते दौड़ के दौलता दाई नूं पकड़ाया। उन्हें गुड़ पकड़ लिया, गली गली तुरी जाती है, होका दिंदी है राए भोए दी तलवंडी ते रब आया, राए भोए दी तलवंडी च रब आया। कही जाती है, अगे अगे तुरी जाती है ते गुड़ वंडी जाती है। गुड़ वंडदियां वंडदियां घर पहुंच गई ते जाके गुड़ घरदियां नूं भी दे दिता। वक्त अपनी चाले अगे तुरिया। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज आप नारायण कला धार जग में परवरियो। सुनी पुकार दातार प्रभ गुरु नानक जग माहे पटाया। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानण होआ। साहिबां दा प्रकाश हो गया। भैन नानकी नूं चा बड़ा है, मेरा वीर मेरे घर आ गया। सानू सिर्फ भैन नानकी दे आनंद कारज तो बाद सौरे घर रहिंदियां भैन नानकी ते गुरु नानक साहब दा प्यार प्रगटाया होया चेते है। पर सच विच जदों तक गुरु नानक साहब 13 साल दे हुंदे ने ते भैन नानकी वो प्यार दिंदी है, तो 13 साल तक दा प्यार भी अथाह ते गूढ़ा है। सतगुरु गुरु नानक साहब जी नूं सब तो पहला पंडित गोपाल दास कोल हिंदी पढ़न भेजिया, संस्कृत पढ़न लई पंडित ब्रजलाल कोल भेजिया, फारसी ते अरबी दे लई मौलवी कुतुबुद्दीन पास भेजिया। ये 2-2 साल पिता दोनों तिन्ना थावां ते भेजते रहे। 6 साल साहिबां दे ये गुजर हो गए, पर पढ़ के नहीं पढ़ा के आउंदे रहे। जदों पिता कालू मेहता ने देखिया कि पुत्र पढ़ाई विच दिलचस्पी नहीं दिखाउंदा, इहनूं व्यापार ते तोड़ दिया। पिता ने 20 रुपये दिते। हुण इतिहास विच लबज है 20 रजत पण।
हुण रजतपण किसी नूं समझ नहीं आउणी, इस करके कथावाचक सौखी जी बात कहंदा भी 20 रुपये दिते। उदों तो 20 रुपये हुंदे ही नहीं सी, रुपया तो बाद च शुरू होया है। उत्थे लिखिया 20 रजतपण। सौखी बात चेते रह जाए इसलिए 20 रुपये कह दिता जाता। आख्या बेटा ये रकम तेरी, मेरा ये नाल कोई लेना देना, पर 20 रुपये तेनों व्यापार लई दिते ने। ते याद रखी ये व्यापार तू करना है, मैनू बस कमाई चाहिदी है। हुण 20 रुपया का सतगुरु लंगर ला के आए, तो 20 रुपये सतगुरु कोल की सी? टोटल कुल पिता तो मिली हुई रकम। इदा कह लीए सतगुरु ने तो सानू दसवंध कढ़न वास्ते आखे है, पर गुरु नानक साहब 20 रुपया चों 2 रुपये दसवंध बनता सी। आप तो 20 रुपया का लंगर ला के आए ने। वो दसवंध देन लगिया भी कन्नी कतराउण वालिया, तेरे गुरु ने ते जदों लंगर तो बात शुरू कीती सी ते कोल 20 रुपये सन, 20 दे 20 खर्च करके आए सन। दसवंध तो 2 रुपये बनता सी। घर आ गए, पिता कहता मैनू 20 रुपया चो कुछ नहीं चाहिए, वो तो तेरे सी। व्यापार चो नफा की करके ले आए हैं, हथेली ते रख दे। बोले कुछ ना। भाई मर्दाने तो पूछ लिया, वो भी खामोश है। गुस्से च आके पूछया, कहने लगे 20 रुपये का लंगर ला दिता, कुछ गरीबां नूं बस्तर दे दिते, कुछ गरीबां नूं आटा लैके दे दिता। गुस्से च आए पिता ने वट के मुंह ते चपेड़ मार दी। जिद्दां ही दूजी चपेड़ मारन लगे, दौड़ के भैन नानकी हाथ पकड़ के कहंदी, पिता जी मेरे मुंह ते चपेड़ा मार मार के मेरी चमड़ी उधेड़ दियो, मैं बर्दाश्त कर लवांगी, पर मेरे गुरु गुरु नानक साहब वाल कोई उंगल चुके, वो रिश्ते च मेरा बाप भी क्यों ना होवे, मैं ओदी भी बांह पकड़न दी जुर्रत रखती हूं। सिखा तेरे गुरु गुरु ग्रंथ साहब वाल कोई उंगल चुके, रिश्ते ते तेरा बाप क्यों ना होवे, तैनू ओदी बांह पकड़न दी जुर्रत रखनी चाहिदी है। तैनू ये बाबे नानक दा इतिहास सिखाउंदा है। फिर बेनती करते हैं, सतगुरु गुरु नानक साहब जी ने सानू लंगर दी प्रथा दिती, लोकां ने साडा लंगर अपना लिया। ध्यान दे के सुनना, मैं बस हुण फतेह बुलाउण लगा। सतगुरु ने सानू लंगर दी दात दिती, लोकां ने साडा लंगर अपना लिया। दसों पहला किहड़े मंदिर विच लंगर हुंदा सी? ये लंगर प्रथा मंदिर वालियां ने भी अपना ली। सतगुरु ने सानू सोहना पहरावा पंजाबी दिता, लोकां ने मुसलमान औरतां ने बुरके उतार के ते सूट सलवार पाउणा शुरू कर दिता। साडा पहरावा लोकां ने अपना लिया, साडा लंगर लोकां ने अपना लिया। सतगुरु ने सोहनी सानू पंजाबी बोली दिती ते लोकां ने अपना लई। इतों तक मूवी बनाउण वालियां नू पता है, मूवी भावें हिंदी दी है, पर जदों तक पंजाबी गाना विच नहीं पावांगे मूवी हिट नहीं होनी। लोकां ने साडी बोली अपना लई, लोकां ने साडा लंगर अपना लिया, लोकां ने साडा पहरावा अपना लिया। गुरु नानक साहब दा गुरपुरब मनाउण वालिओ, तुसी अज गुरु नानक साहब नू दिलों अपना लेना। पूरा वर्ल्ड गुरु नानक साहब नू गुरु मनण लई तैयार बैठा है। आपां दिलों तां किते गुरु नानक साहब नू गुरु मन्नीए तां सही, दिलों प्रवान करिए।
पर असी की करते हाँ, जेड़ी 1469 विच गुरु नानक साहब दे 500 साला पावन प्रकाश गुरपुरब ते 1969 नूं खन्ने दे रहन वाले भाई शोभा सिंह ने सतगुरु दी काल्पनिक तस्वीर बना दिती। असी उन्होंने इन्ना को प्रमोट किया, अपने घरां विच ला लई, गड्डी च ला लई ते दुकान ते ला लई ते क्या ये गुरु नानक साहब जी ने इन्हां नूं मत्था टेक लो। ये ते 1969 च भाई शोभा सिंह ने बनाई। तू की कीता? उसे फोटो अगे 2 कु अगरबत्तियां घुमाइया, तू कहना बस मैं गुरु नानक नूं खुश कर लिया। गुरु नानक दी ते खुशी मिलनी सी सतगुरु गुरु नानक साहब दी जपजी साहब दी बाणी दा पाठ करके, अपने बाप गुरु नानक नाल बातां पर के। पर तू उस काल्पनिक तस्वीर दा इन्ना कु पुजारी बन गया, इन्ना कु पुजारी बन गया कि तैनू समझ ही नहीं आई कि तू सच्चे गुरु नानक नू गुरु ग्रंथ साहब चो छड्ड के एक काल्पनिक तस्वीर दा तू पुजारी बन गया। तो मैं एक बेनती करा, तुसी अज अपने घर ना एक प्लेट च जलेबियां पा के रखना, हलवाई कोलों लिजा के, ते दूजी प्लेट दे विच कागज दे उत्ते सोहणियां जलेबियां तैयार करवा लैण। दोनों प्लेटां टेबल ते रख देना। की होएगा? थोड़ी देर बाद घुमदी घुमाउंदी मक्खी आएगी ते कित्थे बैठेगी? जिस प्लेट विच हलवाई तो लियांदियां जलेबियां रखियां, जिस प्लेट च कागज ते बनी हुई जलेबी रखी है, भावें वो जलेबी बाजारों लियांदियां जलेबियां नालों भी अत दी सुंदर होवे जिहड़ी कागज ते बनी है, पर मक्खी नूं अकल है कि इन्हां चों असली कौन है ते नकली कौन है। ओ गुरु नानक साहब दा गुरपुरब मनाउण वालिया, ये फोटो ते नकली है, तेरा असली गुरु गुरु नानक पातशाह ते गुरु ग्रंथ साहब विच बैठा है। अपने बाबे नानक नूं आके गुरु ग्रंथ साहब नूं मत्था टेकिया कर, फोटोआं दा पुजारी ना बन। मक्खी नूं रब ने अकल दिती है कि असली जलेबी केड़ी है ते कागज ते बनी नकली जलेबी केड़ी है। तैनू किदन समझ आएगी कि तेरा असली गुरु नानक तां गुरु ग्रंथ साहब विच बैठा है। बाबा नानक जी तुहाडी सिक्खी बेमिसाल, असी बेसमझ इसनूं सके ना संभाल। तुसां तां पैदल तुर के धरती दे कोने गाहे, राक्षस ते ठग्गां ताईं सज्जण तुसी बनाए। असी कारां ते भी करिए प्रचार, तां भी सज्जण नहीं तुरदे नाल। बाबा नानक जी तुहाडी सिक्खी बेमिसाल, असी बेसमझ इसनूं सके ना संभाल। मैं रात 2 बजे तो लैके सवेरे 7 बजे तक बंगला साहिब ताबिया ते सेवा निभा के आया। नितनेम दे पाठ तो बाद बैठिया बैठिया ताबिया ते एक उदाहरण चेते च आई कि मैं गुरु नानक साहब दे प्रकाश पुरब ते सतगुरु नूं मत्था टेकण आया, ते जिद्दां ही मैं गुरु नानक साहब नूं मत्था टेकण लगा, सतगुरु ने मेरे तो मुंह फेर लिया। मैं दूजे पासे जाके मत्था टेकिया, सतगुरु ने उथों भी मुंह फेर लिया। मैं घुम के तीजे पासे मत्था टेकिया, पातशाह ने फिर मुंह मोड़ लिया। मैं सोचिया चलो सुखासन वाले कमरे ते चलदा। उथे गया
ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲਿਆ। ਅੰਦਰੋਂ ਹੋਕਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਉ ਵਾਰੀ ਮੁਖ ਫੇਰ ਪਿਆਰੇ करवट दे मुको काहे को मारे। करवट माने पिठ। सतगुरु मैनू पिठ दे के क्यों मार दे हो? मैं तुहाडा सिख हाँ, तुहाडे प्रकाश पुरब ते तुहाडा दर्शन करन आया, तुहाडे दीदार करन आया। सतगुरु मेरे तो मुंह क्यों मोड़दे हो? कहंदे चलिया जा, मैनू तेरी लोड़ नहीं है। सतगुरु क्यों? मेरे तो इन्ना नाराज ओ क्यों? कहन लगे तू सवेरे मेरे कोल आ जाना है, शाम नू शराब दे ठेके ते चले जाना है। दस तैनू किवें अपना मुखड़े दा दीदार करा दियां? तू सवेरे आके जपजी साहब दा पाठ भी कर लैना है, शाम नू ब्यूटी पार्लर ते चला जाना है। दस मैं तैनू किवें दर्शन दे दियां? जदों गुरु नानक दी ये बात सुनांगे ते अज अरदास करके जाइए, सतगुरु 552वां पावन प्रकाश गुरपुरब है, किरपा कर दिओ ये भैड़ियां वादियां साडे अंदरों मुक जाण। आप जी दी बाणी ते बाणे दे धारनी हो के सोहना गुरसिੱਖੀ जीवन जी सकीए। चंद पंक्तियां साहिबां दी वडियाई च कह के फतेह बुलाउण लगा, ध्यान दे के सुनना। जे पंक्तियां चंगियां लग जाण ते गुरु नानक साहब जी नूं हाजर नाजर जान के उन्हां दे चरनां च एक जकारे दी प्रवानगी देना, तवज्जो देना। बूटा जुलम दा जड़ां तो पुट्टण लई, बूटा जुलम दा जड़ां तो पुट्टण लई प्रचारक दौरियां दी रीत जिन्हां चलाई होवे। इक्को रब दा सब नूं दे उपदेश, जात पात दी कंध जिन्ना ढाई होवे, ओ जिन्ना सिੱਖੀ दा महल उसारने लई बाबर बादशाह नाल टक्कर लाई होवे, उस गुरु नानक साहब दे पावन प्रकाश पुरब दी सारी संगत नूं लख लख वधाई होवे। जिन्ना सिੱਖੀ दा महल उसारने लई बाबर बादशाह नाल टक्कर लाई होवे, उस गुरु नानक साहब दे पावन प्रकाश पुरब दी सारी संगत नूं लख लख वधाई होवे। पवित्र बाणी विचों इतिहास विचों बचन सांझ करदियां होइयां बेअंत भुल्लां मेरी झोली पा देणियां। बचन सतगुरु दी बाणी दे इतिहास दे हिरदे दी झोली वसाउणा। कोटान कोटान शुकराना गुरु ग्रंथ साहिब जी का। आप समूह संगतां दा तह दिलों धन्नवाद, समूह प्रबंधक सज्जणा दा तह दिलों धन्नवाद, जिन्ना मान दे आप रब वर्गियां संगतां दे नाल गुरु के बचन सांझ करन दा सुभाग समा बख्शिया। असीस बख्शो, फतेह परवानो आखो जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।